चलिए, तो आज मैं आप लोग को बेसिकली आई वांटेड टू address one request coming from one of my student for 10th grade chemistry, the uh, first chapter, like how do we start with chemical, how do we learn about chemical reaction, and what is relevance and everything. So chaliye, let's start. So today we are going to primarily learn about following things. Uh, what is chemical reaction? What is physical state? Maybe how do we come across or learn about chemical equation? What is its role and how it helps in doing different calculations and everything, right? So, chaliye, let's get started. So the first thing that I wanted to to talk about was uh, two things. One is different physical states, okay, solid, liquid, gas, and aqueous. ACQUIOUS. स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट. ऑलराइट. तो ये चार स्टेट होते हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज. एनी फिजिकल सब्सटेंस, any chemical component or anything that we deal with are in either of the four states, okay, that we talked about. दूसरा चीज़ आपको रिमेंबर करना है, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास. So whatever we deal with, or any any reaction happening around us, anything that is changing its shape or going through a change, it always ensures that there is no loss of mass that happens. अभी कैसे होता है उसको will come to that. I'll show you what it means here in this context, and what is the relevance for this one. Okay. तो देखिए, सबसे पहले तो है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट यू सी. वन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, वन इज कॉल्ड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस आर मोर ऑफ अ टेम्पररी चेंज. जैसे कि आपने लेट्स से किसी एक मेटल के रॉड को गर्म कर दिया एंड देन इट कूल्स डाउन. सो दैट इज दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. चेंज हुआ था, टेम्परेचर बढ़ा था, देन गोज बैक टू ओरिजिनल स्टेट. सेकेंड इज कॉल्ड chemical change, where the changes are little more permanent in nature. जैसे किसी आपने कुछ चीज़ों को मिक्स किया, कलर चेंज हो गया उसका, एंड दैट इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक. दैट्स अ केमिकल चेंज. आपने किसी चीज़ को कोई लिक्विड फॉर्म में था, उसने आपने गर्म कर दिया, एंड दैट बिकम्स वेपर एंड इट कैन नॉट बी मेड लिक्विड बैक. सो दैट्स अनदर चेंज विच इज़ केमिकल नेचर. सिमिलरली जो है समथिंग is in liquid shape and you did some reaction, it becomes solid and it cannot be reverted back. So that's also a chemical change. So in summary, physical change is something that is temporary in nature. It goes back to its original state after some time and without any reaction. And second is chemical changes which are more permanent in nature. जो chemical changes होते हैं, those are depicted in the form of a chemical reaction. So that chemical reaction, depiction of chemical reaction is more like a mathematical formula. इसलिए हम उसको chemical equations भी बोलते हैं. जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना कि आपने कुछ let's say 5 + 7 किया, this becomes 12. This is an equation, mathematical equation, right? या a + b = c. This is a mathematical equation, right? तो उसी तरह से यहाँ पे when we depict a chemical reaction, that is called a chemical equation. अभी इसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. Okay, so let's go back to what is a chemical equation. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपने दिवाली में पटाखे जलाए होंगे, राइट? मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट दिया, मतलब आग लगाई, ओके. इससे बन गया एक पाउडर बनता है, वाइट कलर का पाउडर. जब पटाखा जलाते हो तो नीचे गिरता है, दैट इज़ नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैं मैग्नीशियम के फीते की बात कर रहा हूँ. सो दिस इज़ नथिंग बट कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. मतलब पूरा केमिकल रिएक्शन को जो डिपिक्ट करता है, दैट इज़ व्हाट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है.
तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका LHS है, ठीक है, ये और ये जैसे हुए, दिस इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्शन करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट, दिस इज़ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें हमेशा जो है दो साइड होता है। एक तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो 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 एलिमेंट्स या जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और उससे जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने केमिकल इक्वेशन की बात की, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझा क्या होता है। नाउ नाउ लेट्स लुक एट, लेट्स से अभी देखते हैं कि भाई फार्मूला में क्या क्या होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हम उसी पे रिपीट कर रहा हूँ मैं, सो दैट नो यू कैन रिलेट इट। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अभी देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, राइट। यहाँ पे दो एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक ही है? यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम का एटम है, तो दिस इज़ फाइन, बट ऑक्सीजन ये बैलेंस नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल मतलब जो जो बोलते हैं ना, जो अस्थि पंजर होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, कंकाल जो होता है, हिंदी में बोलते हैं। तो दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। द पर्पस ऑफ स्केलेटल इक्वेशन इज मोर लाइक ए स्टोरी, टेल्स यू कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया हीट के प्रेजेंस में, बट दिस इज नॉट मैथमेटिकली राइट, दिस जस्ट गिव्स यू ओवरऑल पिक्चर। तो इसलिए इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। तो अभी अगर इसको अभी देखेंगे आप, इसको थोड़ा हिसाब किताब इसका ठीक कर देते हैं कि भाई दो ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक ही, अच्छा, तो मतलब 2 MgO बनेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन। तब अभी ऑक्सीजन ठीक लग रहा है, लेकिन मैग्नीशियम का गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो भाई इसको 2 कर दिया। अब नाउ दिस इज नो मैथमेटिकली करेक्ट कि 2 मैग्नीशियम के एटम्स थे, 2 ऑक्सीजन का एटम था, उससे 2 MgO बन गया, मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों के सेम रह गया, कहीं कुछ लॉस नहीं हुआ। सी दिस इज वेयर इट इज रिलेटिंग टू द थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कहीं पे कुछ लॉस नहीं हुआ। और इन दिस होल प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग द इक्वेशन, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। सो दिस दिस इज दैट पार्ट। सो आपने कंजर्वेशन ऑफ मास सीखा, फिजिकल स्टेट्स क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और दिस लाइक मैग्नीशियम का कैल्शियम, बोले कोई मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट Mg। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला हो गया है O2। अब ये O2 क्यों है, वाई देयर 2 एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, दैट पार्ट आई बिलीव you would have learned in previous classes, so I'm not explaining that here, but this is the chemical formula for different substances or reactants that we use for any chemical equation, ठीक है। तो ये हो गया। अभी और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि, चलिए आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल कि भाई अभी अगर आपने एक आयरन रॉड को, आपने एक आयरन रॉड को वाटर के प्रेजेंस में हीट किया अगर, तो बन गया Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, एंड इट रिलीजेज हाइड्रोजन एज अ गैस। तो दिस इज ऑल्सो केमिकल इक्वेशन। अभी यहाँ पे हमने बैलेंसिंग की बात की, चलिए इसको बैलेंस करने प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ तो मामला ठीक है। अभी आयरन यहाँ पे 1 है, बन रहा है 3, सो वी सर्टनली नीड टू हैव मोर आयरन एटम्स हियर और मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर यू कॉल इट। मतलब दिस विल हेल्प यू नो व्हेन यू आर गोइंग फॉर, लेट्स से लैब में आप कुछ करने जाते हो, तो देन यू हैव टू नो दिस थिंग, राइट। सो उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में आप डालो। ऐसा नहीं कि एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा रख दिया और टंकी भर के पानी रख दिया, उसको गर्म कर दिया तो सेब बन जाएगा। दिस विल बी वेरी अनबैलेंस दिस थिंग। सो दैट्स वाई जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हो लैब में, तो देन यू हैव टू नो अबाउट द क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट्स यू विल पुट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो दिस इज जस्ट डिपिक्टिंग हाउ इट इज डन द बैलेंसिंग। ओके, कमिंग बैक टू बैलेंसिंग पार्ट। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ठीक है, अभी आयरन भी आपने ठीक कर दिया, अभी लेकिन गड़बड़ कहाँ है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पे आपका 4 बन रहा है, तो आपको यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा, तब जो है अभी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 हो गया। आयरन का 3 था, यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। अभी हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है टोटल, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। तो बेसिकली इफ़ यू से कि 4, देन यू विल नो कि ओके
3 molecules of iron reacting with 4 molecules of water makes 1 molecule of ferrous oxide and 4 molecules of hydrogen. So this is the balancing part that I was talking about. ठीक है, ओके तो अभी इसमें एक और चीज़ होता है कि अगर आप रिएक्शन को दिखा रहे हो, केमिकल रिएक्शन को, सो हाउ डू यू नो ब्रिंग इन दैट अभी ये पता नहीं चल रहा ना कि ये पानी है या स्टीम है, ये सॉलिड बन रहा है कि लिक्विड बन रहा है, ये गैस बन रहा है क्या बन रहा है. इसको टू डिपिक्ट इट करेक्टली यू कैन पुट द स्टेट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो. भाई ये आयरन जो था सॉलिड फॉर्म में था, पानी जो था यू कैन से कि इट वॉज इन लिक्विड फॉर्म. ओके, एंड यू विल से कि भाई इसको हीट किया गया. ओके, सो जो बना दिस इज सॉलिड एंड दिस बिकम्स गैस. तो दिस मेक्स इट मोर एक्सप्लिसिट, राइट, कि भाई ये रिएक्शन जो है आप इसको क्लियरली डिपिक्ट कर रहे हो. ठीक है, सो रिएक्टेंट्स किस शेप में थे, उनका फिजिकल स्टेट क्या था, उसके बाद क्या रिएक्शन हो, देन व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड. सॉरी. So this is where we are adding the physical state of the reactants and the product which depicts it clearly. तो ये हमने अभी सीखा कि रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होता है. Then we are going to talk about different types of reactions. Okay, so अभी देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड चूना जो बोलते हैं वो ये है एक्चुअली लाइम, जिसको कि आप उसमें अगर पानी मिला दोगे अगर, तो क्या होता है, इट जनरेट्स हीट एंड मेक्स आपका चूना पुताई के लिए कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको. तो ये देखेंगे आप सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है. पानी डाला आपने वो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, और ये जो था आपका सॉलिड फॉर्म में था. ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा दो ये लिक्विड था, ये तो हमने लिख दिया. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिला करके ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, this is aqueous form. This thing I was wrong actually. तो this becomes calcium hydroxide जो आपका चूना पुताई में काम करता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, this and this got combined to make this. So this is one type of equation called combination reaction. मतलब where two reactants react with each other to form one product that is called a combination reaction. Combination reaction. ठीक है, तो दिस सिंपल. वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे. ठीक है, अभी दूसरा आता है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. डिकम्पोज करना तो जानते हैं, कुछ भी चीज़ सड़ती है, कोई भी खाने का चीज़ रख दो आप, पेरिशेबल अगर, या इवन ह्यूमन बॉडी, राइट, अगर आफ्टर समबडी इज डेड यू लीव इट ओपन, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, डज सम रिएक्शन एंड देन डिकम्पोजेस. खाना हम खाते हैं जो पच जाता है, डिकम्पोजेस कम्स आउट इन अ डिफरेंट फॉर्म. तो ये हो गया, ये भी दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन. ठीक है, इसको अगर हम एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर डिपिक्ट करना चाहेंगे, लेट्स से कि एक एग्जांपल है फेरस सल्फेट, उसको अगर आप हीट करते हैं तो उससे बन जाता है, क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये गैस फॉर्म में आता है. ठीक है, तो जब आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो दिस इज सॉलिड, दिस इज solid, sorry, this is in I think it's in liquid form if I'm not wrong. ठीक है, और it might be aqueous. So जो सेमी लिक्विड और लिक्विड फॉर्म में, इसको जब हीट करते हैं तो इससे फेरस ऑक्साइड और
निकलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? This is second form of chemical reaction. Now the third form of chemical reaction is called displacement reaction. तो उसका एग्जाम्पल देखिए, पहले तो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर इंग्लिश में समझेंगे तो क्या होता है, एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना या रिप्लेस कर देना। एग्जाम्पल देखिए, आयरन। ठीक है, आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ में, विथ हीट फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, सल्फेट जो है यहाँ से निकला और इधर चिपक गया। सो दैट इज डिस्प्लेसिंग सल्फेट फ्रॉम कॉपर एंड एडिंग विथ फेरस। दिस इज फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे क्या था कि एक के साथ निकल के दूसरे पे डिस्प्लेस हो गया। अगर इसमें दूसरा फॉर्म हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जांपल देखेंगे, अगर देखा जाए, अगर Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट का आपने बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराया जो एक्वस फॉर्म में है, और ये भी एक्वस फॉर्म में है। इससे बन गया सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, दोनों एक्वस फॉर्म में थे। इससे बना आपका सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका सल्फेट बेरियम पे चला गया और इसका क्लोरीन सोडियम पे चला गया। दैट इज व्हाट इज बिकमिंग, राइट? सो डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका डिस्प्लेस हो गया, इसका डिस्प्लेस हो गया। दैट इज अनदर फॉर्म दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन दैट वी विल टॉक अबाउट इज कॉल्ड, तो अभी तो हमने 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की थी। एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे कि कुछ ऐड हो जाता है, when two reactants combine to make a third product. Decomposition reaction, जहाँ पे एक reactant जो it breaks into multiple products. तीसरा है displacement reaction, जहाँ पे where one part of the reactant gets added to second reactant is called displacement. और जब दोनों के आपस में exchange हो जाते हैं, that is called double displacement. अब इसमें एक पांचवा तरीका है oxidation and reduction, other type of reaction and reduction. तो ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या है? अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल ये कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इट बिकम्स कॉपर ऑक्साइड। मतलब एक परत जम जाती है, जंग लगना बोलते हैं जैसे। तो बेसिकली वो दिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन द सरफेस वेयर नो इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का डिपॉजिट हो जाना on any metal or any chemical, any reactant is called oxidation. इसी का उल्टा होगा रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देना। तो मान लिया जाए एग्जांपल के लिए कॉपर ऑक्साइड बना था, उसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे अगर, तो बन जाता है कॉपर, अलग हो जाता है और वाटर बन जाता है, स्टीम के फॉर्म में निकल जाता है। सो दिस बिकम्स योर, दिस इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन का डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिपॉजिट हट गया, राइट? सो दिस बिकम्स रिडक्शन। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिएक्शन. So in total we have learned about 5 types of reaction, which is combination, decomposition, displacement, double displacement and oxidation reduction. अभी देखिए एक और टर्म सुनेंगे आप लोग, कोरोजन. सो कोरोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन एक्चुअली. जब बोलते हैं ना जंग लग गया, राइट? तो अगर कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ देंगे बहुत टाइम तक एक सर्टन हीट पे, तो इट बिकम्स कॉपर ऑक्साइड.
which is that brittle thing on the surface of copper, this rod, wherever it has come in contact with oxygen, that is copper oxide. इसको बोलते हैं corrosion. Oxidation or corrosion can be used interchangeably. Same thing happens with iron, with any other metal for that matter, right? तो ये हो गया आपका corrosion. तो हमने सीखा corrosion, ये जंग लगना इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ होता है, जैसे कि आप कुछ भी मीट है, ठीक है, मीट को अगर ऑयल के साथ में रख के या फैट ऑयल के साथ में रख करके कुछ टाइम छोड़ देंगे तो इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट स्टार्ट्स रॉटिंग, एक्चुअली सड़ना शुरू हो जाता है। तो दैट 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 एक्चुअली डिकम्पोजेज, और जो भी इसको डैमेज करता है, दैट डजंट रिमेन एडिबल, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, दिस तो यहाँ पे पता है कि ये जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके चीज़ें सड़ती है, राइट। तो दिस समथिंग कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, दिस अवॉइड्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस और डिलेज दैट प्रोसेस। तो बेसिकली अगर किसी चीज़ को सड़ने से बचाना हो तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिला करके इफ यू लीव इट, देन इट डिलेज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस और इसका रॉटिंग को डिले करता है। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रैनिसिडिटी, इसको बोलते हैं रैनिसिडिटी। So the process of delaying or avoiding the oxidation process by adding oxidant is called रैनिसिडिटी, ठीक है। तो सड़ने से बचाने के लिए, तो अगर फ्यूचर में कोई बोलेगा कि भाई हाँ आपको अगर सड़ने से कुछ चीज़ को बचाना है तो आपको पहले पता है कि भाई एंटीऑक्सीडेंट डालें, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जीवन देता है, लेकिन इट्स समथिंग विच ट्रिगर्स द रॉटिंग प्रोसेस। तो आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डिले करेंगे तो आप सड़ने का प्रोसेस को डिले कर रहे हैं, एंड उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लगता है। एंड दिस होल प्रोसेस ऑफ अवॉइडिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस और डिलेइंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस कॉल्ड रैनिसिडिटी। So that's all we learned today, and this was a special request. So I request all the 10th grade students to go through this video and let me know if the concepts were easy to understand. And if you have any question, please feel free to reach out to me on my YouTube channel or send me a WhatsApp message. If there's any confusion, I'll certainly try explaining that. Thank you so much.